ہم سب کے دور قرآن کا سلسلے کی اس کڑی میں، جس میں ہمارے اسپیشل پروگرام رکھے جاتے ہیں، جس کی سیکنڈ لاسٹ آج کڑی ہوگی باذن اللہ نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا ختم قرآن کا ارادہ ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، جس کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم پہلے انشاءاللہ اپنی دور قرآن کی جو سورت چل رہی ہیں اس کی 2 اہم صورتیں ہیں وہ ہم آج پہلے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آف دی سیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ ہم اپنے پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے، جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے اے بنت حرم تو جاگ ذرا کے نام سے۔ تو انشاءاللہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے ہماری بہت ہی اچھی قرآن تجوید ٹیچر سدرا صدیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ قاف آیت نمبر 1 to 5 کی تلاوت کرنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ اس کا ترجمہ ہے، قوف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین میں ان کے جسم میں سے کچھ کھاتی ہے، وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سدرا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع اور دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرے۔ انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور تفسیر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی اور ٹیچرز شاہینہ باجی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم آج سورہ کاف پڑھنے والے ہیں، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ یہ سورہ اپنے نام سے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا نام بھی وہی ہے۔ اس سورہ کی فضیلت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دونوں عیدوں کی نمازوں میں اور جمعہ کے خطبہ سے پہلے اس سورہ کی تلاوت
फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में एक खातून थी, उम्मे हस्साम बिन हारिसा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन के ही इस सूरह को उन्होंने याद कर लिया था, और फजर की नमाजों में भी आप बाकसरत इस सूरह को पढ़ा करते थे। इस सूरह का जैसा कि मक्की सूरतों में अक्सर तौहीद और रसालत और आखिरत के टॉपिक्स होते हैं, उसी तरह से इस सूरह का जो सेंट्रल थीम है, जो मरकजी मजमून है, वह है आखिरत, यानी मौत के बाद दोबारा जिंदगी के बारे में। यह सूरह मक्की है और इसमें 45 आयत और 3 रुकू हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ, कसम है कुरान मजीद की, बल्कि इन लोगों को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि एक खबरदार करने वाला खुद उन्हीं में से उनके पास आ गया। कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद की। किसी भी बात की कसम खाई जाती है कि जो बात कही जा रही है उसको मजबूती देने के लिए कि वह सच है और वह हक है। तो ये किस बात पे कसम खाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनके, नबी बनके आने पे वहां के लोग ताज्जुब करते थे। फिर मुनकरीन कहने लगे, यह तो अजीब बात है, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे? यह एक दूसरा जो एतराज था उन लोगों का कि एक तो नबी जो कि उन्हीं लोगों की तरह इंसान है, वह नबी बन के आया है, और दूसरा एतराज था कि मरने के बाद कैसे हम दोबारा जिंदा होंगे, तो दोबारा उठाए जाएंगे। यह वापसी तो अकल से बईद है। हालांकि जमीन उनके जिस्म में से जो कुछ खाती है वह सब हमारे इल्म में है और हमारे पास एक किताब में महफूज है। यह बात उन लोगों को, यानी मक्का, जो कुरैशे मक्का, कुफारे मक्का थे, उन लोगों को नहीं समझ में आती थी कि सचमुच में हम लोग मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होंगे और इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक एक जो पार्ट है, एक एक छोटा से छोटा पार्ट भी, सारे जो कहीं भी बिखर गए हों, चाहे वो जमीन खा गई हो, जमीन के मिट्टी में गहराइयों में दबे हुए हों, या पानी के अंदर हों, या जंगलात में हों, सब एक एक पार्ट को अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे उस दिन, और उसको इकट्ठा करके फिर से दोबारा जिंदा करेंगे। बल्कि इन लोगों ने जिस वक्त हक उनके पास आया उसी वक्त उसे साफ झुटला दिया। इसी वजह से अब यह उलझन में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने कभी अपने आसमान की तरफ देखा कि किस तरह हमने इसे बनाया और आरास्ता किया? फिर से एक बार कहा जा रहा आसमान की तरफ देखने के लिए कि देखो आसमान की तरफ, और उसमें कहीं कोई रुकना नहीं है। हम देखते हैं कि हम एक बेडशीट बिछाते हैं तो उसमें कितनी शिकन होती है, और उसको हम अपने हाथों से सीधा करते हैं और उसको खींच के जो बेडशीट को है उसको सही करते हैं कि कोई शिकन न रहे। लेकिन इतना बड़ा आसमान और इतनी जहां तक निगाह जाती है वहां हद निगाह तक बिल्कुल चिकना, कहीं कोई दरार नहीं, कहीं कोई उसमें सुराख नहीं, कोई शिकन नहीं। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, और जमीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ जमाए और उसके अंदर हर तरह की खुश मंजर नबातात उगा दिए हैं। यह सारी चीजें आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो हक की तरफ रुजू करने वाला हो। इनसे उन्हीं लोगों को बसीरत मिल सकती है जो लोग इस पे यकीन रखते हों, यानी हक की तरफ आने वाले हों। जो इस हक का इनकार करेंगे और जो इस बात को सिरे से मानेंगे नहीं, उनके लिए ये निशानियां कोई भी माने नहीं रखती हैं। और आसमान से हमने बरकत वाला पानी नाजिल किया, फिर उससे बाग और फसल के गल्ले और बुलंदो बाला खजूर के दरख्त
पैदा कर दिए, जिन पर फलों से लदे हुए कुश तबरता लगे हुए हैं। यह इंतजाम है बंदों को रिज्क देने का। उस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श देते हैं। मरे हुए इंसानों का जमीन से निकलना भी उसी तरह होगा। पहले भी हम मिसालें देख आए हैं कि अल्लाह ताला बारिश के पानी के जरिए से पेड़ पौधे उगाने की मिसाल, मुर्दे जो हैं उनको फिर दोबारा जिंदगी देने की बात कर रहा है। यहाँ भी वही आयत है। और बताया जाता है कि अरब के खित्ते में कोई कोई जगह ऐसी थी जहाँ 5-5 साल तक बारिश नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही बारिश होती थी फिर उसमें से पेड़ पौधे, वो जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, निकल के लहलहाने लगते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला हजारों हजार साल जिसकी पहले मौत हो गई है और क्यामत आने तक ना जाने कितने वक्त गुजर गए होंगे, तो उनको भी इसी तरह जिंदा करेगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 12। इनसे पहले नूह की कौम और अस्हाबे रस्सा और समूद और आद और फिरौन और लूत के भाई और ऐका वाले और तुब्बा की कौम के लोग भी झुठलाए जा चुके हैं। हर एक ने रसूलों को झुठलाया और आखिरकार मेरी वाईद उन पर चिस्पा हो गई। हमने सभी कौमों के बारे में और उनके आजाम के बारे में पढ़ के गुजर चुके हैं। असहाबुल रस्सा वह थे जिन्होंने अपने नबी को कुएं में डाल के उनको मार दिया था। और तुब्बा एक कौम थी जो कि सबा, जो हमने पढ़ा है, जो यमन का एक हिस्सा था सबा, उसी में एक कबीले का नाम हमीरा था। इसके सरदार को तुब्बा कहा जाता था। बहुत ही दौलतमंद लोग थे और काफी ही तरक्की याफ्ता लोग थे। जैसे आज का यूरोप में हम बड़े बड़े बिल्डिंगें देखते हैं, उसी तरह उस जमाने में भी थी और काफी नेमतें और दौलत अल्लाह ताला ने उनको दे रखी थी। उन लोगों ने भी रसूल को झुटलाया और अजाब आया उन पे। आयत नंबर 15। क्या पहली बार की तखलीक से हम आजिज थे, मगर एक नई तखलीक की तरफ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं कि पहली तखलीक करना इंसानों की या किसी भी मखलूक की ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत की दूसरी बार तखलीक करना या बनाने के। तो एक हदीस है इसी सिलसिले में कि हदीस कुदसी है जो जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम यह कहकर मुझे ईजा यानी तकलीफ पहुंचाता है कि अल्लाह ताला मुझे हरगिज दोबारा पैदा नहीं करने पे कादिर नहीं है, जिस तरह उसने पहली मर्तबा पैदा किया है। पहली मर्तबा पैदा करना दूसरी मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं है, अल्लाह ताला खुद ही पूछ रहे हैं। यानी अल्लाह ताला को इस बात से तकलीफ होती है कि वो लोग कहते हैं कि आखिरत नहीं आएगी और फिर से दोबारा जिंदगी नहीं होगी। आयत नंबर 16। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा उससे करीब हैं। रगे गर्दन जो होती है, अक्सर जानवरों की कुर्बानी होती है, जानवर ज़िबह किए जाते हैं तो उसी रग को काटी जाती है जिससे उसकी रूह फना हो जाती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है जैसे हमारे गर्दन में भी वो नस या नर्व जो भी है वो है, और उसी के मिसाल दे के कह रहा कि उससे भी ज्यादा हम अपने बंदे से करीब हैं। और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। बार बार हम किरामुन कातिबीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि दो फरिश्ते हैं जो कि हमारे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ बैठे हैं। दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता सही बातों को लिखता है और जो गलत या बदी वाले अमाल होते हैं बाईं तरफ का फरिश्ता लिखता है। हर चीज शब्द कर रहे हैं, यानी नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बास निगरां मौजूद नहीं हो। फिर देखो वह मौत की जानकनी हक लेके आ पहुंची, यह वही चीज है जिसे से तू भागता था। और फिर सूर फूंका गया, यानी ये फरिश्तों के बात बताने के बाद से अब फिर क़यामत के हश्र के मैदान के तरफ अल्लाह ताला ले जा रहे हैं। फिर सूर फूंका गया, यह है वह दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स उस हाल में आ गया
कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। कहा जाता है ये दोनों फरिश्ते जो हैं, जो इंसान के साथ हैं, वही उस दिन क़यामत के दिन एक उसके अमाल का रजिस्टर संभालेगा और एक उसको पीछे-पीछे मैदान हश्र की तरफ ले जाएगा। उस चीज की तरफ से तू गफलत में था, हमने वह पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था। आज तेरी निगाहें खूब तेज हैं। यानी अब तो तुझे खूब नजर आ रहा होगा, जिस दिन हश्र के मैदान को इंसान देखेगा कि वह सब कुछ यहाँ मौजूद है, जिसकी खबर अल्लाह ताला बार बार मुझे दुनिया में दे रहा था। उसके साथी ने अर्ज किया, यह जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो हक से अनाद रखता था, हक को खैर को रोकने वाला और हद से तजावुज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बना बैठा था। डाल दो उसे सख्त आजाब में। जो यहाँ पे उसके साथी ने अर्ज किया कि ये जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। यहाँ वो फरिश्तों की बात भी हो रही है और अल्लाह ताला और तफसीर में बताया गया कि शैतान भी उसका साथी था, वो भी कहा गया है। तो यहाँ जो जहन्नमी का कैरेक्टर है कि वो हक से अनाद करता था, यानी सख्त नफरत करता था जो हक उसको बताया जाता था, और नेकी को रोकने वाला था, न खुद करता था न दूसरों को करने की रुख्सत दिलाता था, और हद को क्रॉस करने वाला, हद जो अल्लाह ताला के हदूद जो हैं, जो अहकामात हैं शरीयत के, उसको क्रॉस करने वाला, शक में पड़ा हुआ और अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को खुदा बना बैठा था। ये उस जहन्नमियों का कैरेक्टर है और अल्लाह ताला कहेंगे डाल दो उसे सख्त अजाब में। उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावंद मैंने इसको सर्कस नहीं बनाया, यहाँ मुराद शैतान है, बल्कि यह खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हजूर झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही अंजाम बद से खबरदार कर चुका था। मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूँ। पर शैतान जो दुनिया में उस शख्स के साथ लगा हुआ था, वहां जाके उससे झगड़ेगा और कहेगा कि यही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। ये जो मकालमे होंगे मैदान हश्र में और जहन्नम में जाने के पहले। तो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला जो कह देता है वह कभी भी बात पलटती नहीं है। आयत नंबर 30, वह दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, और वह कहेगी क्या और कुछ है। इसमें बताया जाता है कि जब जहन्नम से पूछा जाएगा कि तू भर गई, तो वह घबरा कर चीख उठेगी कि अभी और भी आदमी है क्या, मतलब अभी बहुत जगह है मेरे यहाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस जहन्नम को जिन और इंसानों से भर दूंगा। उसमें डालने के बाद एक हदीस का मफहूम है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम कहेगी, जब उसमें सारे जहन्नमी इंसान और जिन डाल दिए जाएंगे, तो जहन्नम और मुतालबा करेगी, कहेगी कि क्या अभी और, यहाँ तक कि रब्बुल इज्जत अपना पैर डाल देगा। फिर जहन्नम कहेगी बस बस, तेरी इज्जत और तेरे जलाल की कसम। सही बुखारी की ये हदीस है। आयत नंबर 31, और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी। इधर हमने देखा कि जहन्नम में फेंक दो कहा जा रहा है, उठा के फेंक दो जहन्नमियों को, और जन्नत में जाने के लिए मुत्तकीन को खुद जाना भी नहीं पड़ेगा, जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, यह है वह चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रिजू करने वाला और बड़ी निगाहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था। ये जन्नतियों के कैरेक्टर हैं, जो कि पिछले कई सूरह से हम जहन्नमी और जन्नती के कैरेक्टर पढ़ते आ रहे हैं। हम एक कंपैरिजन लिस्ट बना सकते हैं और उसमें अपने आप को जांच सकते हैं। जो दिल गिरविदा लिए हुए आया है, दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वह दिन हयाते अब्दी का दिन होगा, वहां उनके लिए वह सब कुछ होगा जो चाहेंगे, और हमारे पास उससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है। यानी जितना अल्लाह ताला बचा चुके हैं, उसके अलावा भी जन्नत में और भी बहुत सी चीजें हैं जो
अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी है जन्नतियों के लिए। हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था। फिर क्या वह कोई जाए पनाह पा सके? इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो या जो तवज्जो से बात सुनता हो। यानी तवज्जो से बात सुनने के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनना है कि जब कोई हकीकत बात को समझाए या इल्म की महफिल हो, वहाँ तवज्जो से बात सुनने से आदमी उसको फॉलो करने की सलाहियत पा सकता है। आयत नंबर 38, हमने जमीन और आसमानों को और उन दरमियान की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा कर दिया और हमें कोई थकान लाहक ना हुई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब के हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो, तलुए आफ्ताब और गरूबे आफ्ताब से पहले और रात के वक्त फिर उसकी तस्बीह करो और सिजदा रेजियों से फारिग होने के बाद भी। यानी नमाज के औकात बताए गए हैं कि जहाँ भी कुरान में हम्द व तस्बीह के खास औकात के साथ मखसूस किया जाता है, वहाँ से मुराद नमाज ही होती है। तलुए आफ्ताब यानी फजर की नमाज, गरूबे आफ्ताब वह नमाज, एक जोहर, दूसरी असर और रात के वक्त मगरिब और इशा की नमाज, और तीसरी तहज्जुद भी हो सकती है। और जब तस्बीह कर चुको और सिजदा रेजियों से फारिग होने के बाद यानी नमाज पढ़ने के बाद से अज़कार, जो नमाज के बाद के अज़कार होते हैं वो पढ़ने चाहिए, खास तौर से सुबह और शाम के अज़कार। और सुनो, जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज महशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वह जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं और हमारी तरफ ही उस दिन सबको पलटना है, जब जमीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। यह असर हमारे लिए बहुत आसान है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बना रहे हैं उन्हें हम खूब जानते हैं और तुम्हारा काम उनसे जबरन बात मनवाना नहीं है। एक दाई का किरदार यह होना चाहिए कि बस बात अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, इस बात की हरगिज कोशिश नहीं करनी कि उसको वो फॉलो करे ही। बस तुम इस कुरान के जरिए से हर उस शख्स को नसीहत कर दो जो मेरी तंबीह से डरते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस तंबीह कर दो और वही लोग नसीहत को कबूल करेंगे जो अल्लाह से डरते हैं। इस सूरा में हमने आखिरत और जहन्नम और जन्नत का पहलू देखा। इसमें से थोड़े से करने के काम ये लेते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ गौर करने को कहा है ताकि हम भी आसमान की तरफ गौर करें और अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत हमारे दिल में बैठ जाए। नमाज के बाद के अजकार को सीखने हैं और सुबह शाम जो भी अजकार है या हर नमाज के बाद से, जो कि इंशाल्लाह हम लोग पोस्ट कर देंगे ग्रुप पे, तो जिन बहनों के पास नहीं है वो अजकार की दुआएं तो वो लोग पढ़ के कर सकती हैं। हमारे दाईं और बाईं तरफ 2 फरिश्ते हैं जो कि एक सही फैसले को लिख रहे हैं और दूसरा जो गलत बातें होती हैं उसको लिख रहे हैं। तो हमको अपना मुहासबा करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है कि हम किस फरिश्ते को लिखने में बिजी रख रहे हैं। आगे सूरह ज़ारियात